Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class for HTML5. More on HTML5. Before starting the class, there is a message for you. Stay at home, stay safe, wash your hands. Now our HTML5 and first is CSS. CSS means Cascading Style Sheet. In 1996, W3C officially recommended CSS1. And what the mean of W3C? W3 means everyone knows World Wide Web. शॉर्ट में हम वर्ल्ड वाइड वेब को W3 भी बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज सी मीन्स कंसोर्टियम. कंसोर्टियम मीन्स आपकी दो कंपनीज या फिर उससे ज़्यादा आपकी कंपनीज जब मिलकर के कोई नया वर्क करती हैं आपके इस फील्ड में, तो वो आपकी कंसोर्टियम कहलाता है. 1996 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एसोसिएशन जो आपकी होती है उसने CSS1 को रिकमेंड किया था. ठीक है, CSS1 आपके कई वर्जन रखती है जिसमें लेटेस्ट वर्जन इट इज़ here CSS3, that means Cascading Style Sheet 3. See the next. It was introduced by the World Web Consortium to enhance the presentation of a web page. Why we are using this CSS? By the help of this CSS, we can enhance and modify and beautify the web pages. Okay. Now see, Consortium को यूज़ करने से और CSS को यूज़ करने से हम हमारे वेब पेज की प्रेजेंटेशन को, लुकिंग को जो हम विजुअलाइज करते हैं उसे हम एनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं. इट वाज अर्लियर डन यूजिंग बेसिक HTML टैग एंड देयर एट्रीब्यूट्स. ये सभी कुछ चीज़ें हम काफ़ी हद तक HTML टैग में और उनकी हेल्प एट्रीब्यूट की हेल्प से कर चुके हैं. It allowed the content of a web page to be separated from the layout of the web page. आपकी जो CSS में हम वर्क करते हैं तो आपकी जो भी कंटेंट होते हैं वो आपके वेब पेज पे आपको कैसे सेपरेट करने हैं, उनके लेआउट्स कैसे होंगे, all the things are available in the CSS. CSS gives permission to your content that you have to present on the web page. See the next point. CSS is the set of rules that govern how the elements in a web page are displayed. CSS कुछ आपके रूल्स भी प्रोवाइड करवाता है जिनकी हेल्प से आप जो भी कंटेंट आपका है, एलिमेंट्स आपके हैं वो वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले होंगे वो आपका बताता है. See the next point. It focus on the style and design of the content. CSS mainly focus on the style and design of the content. What you are making, what you are uploading, what you want to display on the web page. Your content means उसका स्टाइल, डिज़ाइन जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप CSS की हेल्प से सेट कर सकते हैं. CSS lets you control the look and feel of a multiple page of a website using a single sheet of text. रिड्यूस द लेंथ ऑफ कोड. दैट मीन्स आप जो भी आपको डिज़ाइन या फिर स्टाइल अप्लाई करनी है वो आप सिंगल पेज पे आपने अप्लाई की है और वही सेम आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे भी या फिर बाकी के रिमेनिंग पेज पे भी हो जाए, तो आपको बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आप वही सेम जो कोडिंग आपने सिंगल शीट के लिए की थी वो आप मल्टीपल पेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी हेल्प से आपकी जो कोड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. By the help of CSS, the coding you are using for the single sheet can be used for the multiple pages, and this will help you to reduce the length of your code. CSS is used to change the appearance of the content of the web page. CSS को हम हमारे जो कंटेंट वेब पेज पे हमने डाला है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए भी यूज़ होता है. What the content you are uploading on the web page, by the help of CSS you can change the appearance of that content. Now see the next.
A CSS document is composed of various style and rules that are read and interpreted by a browser to arrange the content on a web page. CSS में आपकी क्या चीज़ें होती हैं? आपकी मेनली दो चीज़ें आपकी होती हैं, वेरियस स्टाइल्स एंड रूल्स। आप कौन कौन सी स्टाइल्स आप अपने कंटेंट को अप्लाई कर सकते हैं जो आपके वेब पेज पे नज़र आएंगी, एक तो वो, और उनके लिए उन स्टाइल को अप्लाई करने के लिए आपके रूल्स क्या होंगे वो। ये दो चीज़ें आपकी CSS के डॉक्यूमेंट में होती हैं। The two things that are available in the CSS document, that are the various style and the rules that will help you to arrange the elements content on the web page. Now syntax. The style rule is written as per the following syntax: selector, property, colon, value, semicolon, property, colon, value, semicolon and dash 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 dot dot dot. Okay, what the mean of it? आप जब भी कोई कोडिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर एक स्टाइल होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये आपका सिंटेक्स क्या है, ये आपका हेडिंग है, और बाकी जो ये लिखा हुआ है वो आपका क्या है, टेक्स्ट है, रिमेनिंग का डेटा है। तो आप जो स्टाइल है वो दोनों पर अप्लाई करना चाहते हो। कैसे अप्लाई करना चाहते हो? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा कैप्स लॉक में लिखा है, सारे कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं, बट यहाँ पर स्टाइल वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर से मैंने लिखा है, बट यहाँ पे वाइट कलर से लिखा है। तो दोनों में जो मैंने स्टाइल यूज़ की है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको बताना हो कि आप कौन सी स्टाइल कहाँ यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्टर में बताना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग में स्टाइल यूज़ करनी है तो सेलेक्टर की जगह मैं वहाँ पे क्या लिख दूँगी, हेडिंग, तो वहाँ पे वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब जितने भी आप कोड करोगे ना, यहाँ पे आपने हेडिंग लिख दिया ना, तो वो कोड आपके इस हेडिंग के लिए हो जाएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स आप क्या चीज़ करना चाहते हो, उसे कलर देना चाहते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में आपका क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू मीन्स कौन सा कलर देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है तो मैं इसे कलर देना चाहती हूँ, कौन सा कलर दूंगी। नाउ सी सेलेक्टर, इट रेफर्स टू द टैग टू विच द स्टाइल टू बी अप्लाइड। ये आपका वो टैग होता है जहाँ पर आपको स्टाइल अप्लाई करनी होती है। प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी इज ए स्टाइल और एन एट्रीब्यूट टू बी अप्लाइड टू द सेलेक्टर। आपकी जो सेलेक्टर पे आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। देन आफ्टर वैल्यू, एवरी प्रॉपर्टी हैज़ ए वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच द सेलेक्टर इज डिस्प्लेड। आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी एक वैल्यू होती है जिस पर आपको अप्लाई करना होता है, जो अभी आप सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग का एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, तो H1 हेडिंग आपकी बता रही है। ओके, देन कलर, हेडिंग का कलर हम कर रहे हैं, और देन कौन सा कलर हम यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका सिंटेक्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक आई वॉन्ट टू शो दैट इट विल हेल्प यू टू सी द थिंग्स। आपको मैं एक कोडिंग करके दिखाती हूँ जिसकी हेल्प से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप जानते ही हो ना, एवरीवन नोज where we can do the coding of HTML. We can do the coding of HTML in the notepad. तो first see the notepad. I am taking here notepad. Okay, और आपके लिए कोड रेडी है। ये मैंने कोड यहाँ पे लिखा, you can see here doc type मैंने लिखा, then you can see angle bracket. Okay, then after HTML के बाद आप थर्ड लाइन देखिए, it is H1, that means heading. We are using here style and double inverted comma. Okay, then color, your colon, then red, semicolon. colon means आपका ये दोनों एक ही कमांड के लिए वर्क करेंगे। When you use semicolon, that means आपकी एक कमांड फिनिश हो गई है, आप नेक्स्ट कमांड उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। You can see this style turns the heading red. Okay, हमने H1 यूज़ किया था, हमने सिर्फ हेडिंग को कलरफुल करना है। ओके स्टूडेंट्स,
तो हेडिंग को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे ही हमने आपका ये हैश स्लैश लगा करके उसको क्लोज कर दिया। ओके, देन पी, दिस इज़ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स आप कोई भी कंटेंट हेडिंग के बाद लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग हेयर दिस इज़ ए पैराग्राफ। ओके, फिर उसके बाद हमने इसे फिनिश कर दिया, आपने स्लैश यूज़ कर दिया। देन आपके बॉडी आपको फिनिश करनी है एंड देन लास्ट HTML, ये आपको यहाँ पर फिनिश करना है। बॉडी फिनिश करने के लिए मैं भूल गई हूँ एक कमांड, आपको बॉडी स्टार्ट भी तो करनी होगी। तो यहाँ पर आपने बॉडी स्टार्ट कर दी। ओके, तो अब देखते हैं कि इसका कैसे आपका यूज़ होगा। जस्ट गो बैक टू द स्लाइड्स, सी द नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS। अब हम हमारे जो मेथड हैं वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सी हेयर, external style. Okay, it is used when the style to be applied together to a set of web page or a complete website. It is done by creating a separate CSS file. जब भी हमें एक्सटर्नल स्टाइल में वर्क करना हो तो आपको क्या करना है, आपकी स्टाइल को कलेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है और एक वेबसाइट के लिए कम्प्लीटली आपको यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल स्टाइल आपके देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कंप्लीट वेबसाइट होती है, वेबसाइट का कुछ एक पार्ट होता है और वेबसाइट की कुछ एक लाइंस होती हैं। 3 सेक्शंस हमारे पास होते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल की। जब आपको कंप्लीट वेबसाइट के पेजेस पे वर्क करना हो, मतलब एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट यू आर टेकिंग, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, व्हाट आई वांट टू से हियर। जब आपको कंप्लीट वेबसाइट पर वर्क करना है, उसके सभी पेजेस पे वर्क करना है, तब हम यूज़ करेंगे वो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल होगी, जिसके लिए आपको एक सेपरेट CSS की फ़ाइल बनानी होगी। व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन ए कंप्लीट वेबसाइट और ऑल द सेट्स ऑफ द वेब पेज, यू हैव टू यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल। ओके, कंप्लीट वेबसाइट पे या कंप्लीट जो आपके सेट्स हैं वेब पेजेस पे, वो सेम स्टाइल आपकी अप्लाई होगी और उसके लिए सेपरेट फाइल यू हैव टू मेक इन द CSS। ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल स्टाइल। नाउ सी, नेक्स्ट इज योर इंटरनल स्टाइल. It is used when you want to apply some effects to particular web pages. Okay, that means आपको कोई भी कुछ इफेक्ट्स ही आपको एक पर्टिकुलर वेब पेज पे, आपको कंप्लीट वेबसाइट या कंप्लीट सेट ऑफ वेब पेजेस पे वर्क नहीं करना है, कुछ ही वेब पेज पे आपको वर्क करना है, तो आप इंटरनल स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ एडेड टू द हेड एलिमेंट ऑफ ए वेब पेज बाय राइटिंग द कोड स्टेटमेंट इनसाइड द एंगल ब्रैकेट स्टाइल एंड देन टैग. जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज पर या पर्टिकुलर कंटेंट पे, किसी भी वेबसाइट के पर्टिकुलर कंटेंट या वेब पेज पे आपको स्टाइल्स अप्लाई करनी है, तो हम यूज़ करेंगे हमारी इंटरनल स्टाइल, और इसके लिए आपको स्टाइल स्टार्ट और स्टाइल एंड भी आपको टैग यूज़ करने हैं. नाउ सी द नेक्स्ट. दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर योर internal and external styles. This example I am showing you here. You can see that is head. हमने एक head लिया, ठीक है. head में we are defining here style में body में selector. body means आपकी body में दोनों चीज़ें होती हैं, आपका कंटेंट भी होता है, उसकी हेडिंग भी होती है. तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ मेंशन करोगे वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो. देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर, यू कैन सी here what is the background here, that is white. if you want to change the color, background color, you can write here background. ये आपका सेलेक्टर हो गया. कलर आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई. कॉलन आपके ये दोनों में कनेक्टेड है. सियान ये आपकी वैल्यू हो गई जहाँ पे हमने कलर दिया. तो आपकी बॉडी में जो बैकग्राउंड होगा वो आपका सियान होगा. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द H1 मीन्स हेडिंग. ओके, हेडिंग में हमने क्या लिखा है इधर, कलर, ठीक है. हेडिंग का कलर क्या होगा, येलो होगा. ओके, कॉलन एंड सेमी कॉलन स्टूडेंट्स, वी रिमेंबर ऑल द थिंग्स. आपके एंगल ब्रैकेट, ओके, देन आफ्टर योर कॉलन एंड सेमी कॉलन. इफ एनीथिंग यू मिस्ड, योर कोड विल बी इनकम्प्लीट
and it will give the error in your coding. Okay, then after what you have opened here, you have to close here. आपने जो भी चीज़ यहाँ पर ओपन की है आपको वो यहाँ पर क्लोज करनी है। तो इस तरीके से आपका ये इंटरनल स्टाइल का एग्जाम्पल है। सी द नेक्स्ट, योर inline style. Inline style, it is used when you want to apply a style to a particular instance of an element of the web page. किसी पर्टिकुलर आपको पैराग्राफ या लाइंस पे आपको अप्लाई करनी है तो उस केस में हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं। सी द सिंटैक्स, एंगल ब्रैकेट, एलिमेंट, नेम, स्टाइल, यू कैन सी इक्वल का साइन हेयर, and then inverted double inverted comma, property colon value, property colon value, semicolon semicolon. Students, be remember colon, semicolon and angle bracket. Okay, what is the example for it? You can see here body style. Body style means you can see this slide, that upper side जहाँ पर inline लिखा हुआ है that is called your heading and remaining is called body. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी, हमने यहाँ पे बॉडी लिखा, आप चाहें तो हेडिंग लिखेंगे तो वो हेडिंग पे वर्क करेगा। ओके, बॉडी स्टाइल वही सेम इक्वल डबल इन्वर्टेड कोमा, देन बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर व्हाट वी आर टेकिंग हियर, रेड। ठीक है, तो ये आपका इनलाइन स्टाइल का हुआ। सीधा कोडिंग, अब हम कोडिंग में आपको करके दिखाती हूँ। नोटपैड पे हमने लिया, वही चीज़ हमने ली है यहाँ पर। अब इसको हम जब सेव करेंगे, सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था व्हाट वी कैन यूज़ हेयर फॉर द सेविंग, गिव देम नेम। वी आर गिविंग हेयर क्लास 7, ओके, डॉट क्लास 7 डॉट HTML। आपको यहाँ पर दो ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आपको जो एक्सटेंशन देना है HTML या फिर HTM, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव, and then select the location also and save हो गया। you can see from your class 7, see here हमने अभी दिया था class 7 नेम, ये आपका हो गया। जस्ट क्लिक कीजिए इसको, तो आप देखिए वहाँ पर अब आपको कोडिंग भी आपको मैं दिखाती हूँ इधर पैरेलली। इसे मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज। व्हाट वी हैव राइट हेयर, वी हैव राइट हेयर कलर रेड। ठीक है, तो कलर रेड आ गया। और पैराग्राफ, दिस इज़ ए पैराग्राफ, वो आपका बॉडी था तो वो बॉडी हो गया। ओके, अब आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हेयर ब्लू, मैंने ब्लू लिखा, कंट्रोल एस सेव कर दीजिए इसको। ठीक है, सेव कर दिया। देन आफ्टर इसे वापस से ओपन करना होगा। ओके, वापस से ओपन करो इसे, सी कलर इज चेंज। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो भी चाहें यहाँ पर अपना कलर अप्लाई कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू मेक द चेंज फॉर अट्रैक्टिव एंड लुक योर डेटा लुक ब्यूटीफुल, आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कोडिंग में जैसे चेंज करोगे वो वैसे ही आपको वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। I think I should stop here and we will see next thing in the next week. So students, be ready for the next week with the next topic. Today we have done our CSS and different methods of CSS like your external, your internal and your inline. External means if we want to work on the complete website and or set of web page, जब भी हमें आपके वेब पेजेस पे या फिर कंप्लीट वेबसाइट पे वर्क करना है तो हम एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ करेंगे। हमको किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज पे वर्क करना है तो हम इंटरनल स्टाइल यूज़ करेंगे। यदि किसी लाइन पर या फिर किसी इंस्टांस पे पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमें वर्क करना है तो स्टूडेंट्स हम इनलाइन यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक वी विल मीट अगेन विद द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तब तक स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।